Hello and good afternoon to all of you, and a very warm welcome to today's webinar. And today we are actually going to discuss something very interesting, and we thought of like discussing something slightly different from normally what sort of webinars you would be seeing. So content-wise, what we are going to talk today is all about like how do you evaluate trading strategies. Like if you have a trading strategy or if you have someone's performance in front of you, so how do you evaluate? Like how do you know whether it is good or whether it is bad, and what are the scope of improvements? So all of it, right? So let me just share my screen. Yep. So I think you are able to see a PowerPoint slide. Yes. So right then. So as a topics like how to evaluate trading strategies, and before I start, let me give a brief introduction about myself. I am Prasenjit Biswas, and I've been with Kotak for more than 15 years now, and I'm a part of the derivative research desk at the moment. And so let's start with this quote that you can see on the screen. My attitude is that I always try to be better prepared than someone with whom I'm competing. Right. So what does it mean? Like I want to be one step ahead of my competitor. And how do you achieve that? You achieve that by building systems, understanding your own trading algorithm, and like how is it performing, and whether it is likely to perform, and what are the parameters numbers are showing. So first we have to understand what sort of parameters to look at. How do you design a system? How do you evaluate a system? Like let's say someone like me who comes and says that, sir, I have a great strike rate and I'll be making money for you. So what are the right questions that you need to ask to that person? And so that you are in a better position to understand how good as a trader or as an analyst or as a any system that one is proposing, how good that is, right? So as I said, today's agenda, just give me a moment. Yes. So we'll start with understanding a bit about backtesting and what is backtesting and versus the live results. So live results versus backtesting, what is the difference? And then we will move on to the parameters of evaluating a particular system. What are the key, some simple, 1, 2, 3s that you should be checking, right? So that you understand what is the system doing or how good is the performance, right? And after that, we actually will try to build a live system in front of you and show you how to actually evaluate whatever parameters we think are the basic ones, and we will do it live, right? So, well, the mode of communication, I'll be talking in Hindi and English mix for the benefit of our audience. So I hope I'm audible. Can anyone just give me a confirmation? Okay, great. So good to go. Right. So understanding backtesting versus live results. What does it mean? So when we talk about backtesting, backtesting, as the name suggests, that you have something, you have a data or you have a strategy, and you are actually going back into the history to understand how the strategy it has performed in the past. ठीक है? So बेसिकली बैक टेस्टिंग का मतलब यही है कि आपके पास में मान लीजिए कोई ट्रेडिंग लॉजिक है, राइट? यू हैव अ ट्रेडिंग एल्गोरिथम और यू हैव अ ट्रेडिंग लॉजिक इन माइंड एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड वेदर इट वर्क्स इन द मार्केट और नॉट. आपको पता ये करना है कि अगर हम ये स्ट्रैटेजी को मार्केट में इंप्लीमेंट करें, क्या ये काम करेगा? देखिए दो तरीका है. या तो आप उसको ये बिलीव करें कि हाँ ये काम करता है और रियल मनी से आप उसको मार्केट में इंप्लीमेंट कर दें,
प्रॉब्लम उसमें ये है कि इफ द स्ट्रैटेजी हैज सम शॉर्टकमिंग्स, जो कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद मालूम पड़ता है, तो वो केस में इट माइट कॉज अ लॉस टू यू, विच इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड. सो हमको अगर किसी लॉजिक पे बिलीव करना है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि उसको एक बार जो है हम डेटा क्या बोलता है वो देख लें. So that is where the concept of all this, back testing and these things come in, wherein we define a logic, और उस लॉजिक के हिसाब से अगर आप सिस्टम बेस्ड कोई नया थ्योरी सोच रहे हैं, राइट, तो अगर आपके पास में कोई सेट लॉजिक है, तो उसको आप जो है एक सिंपल तरीके से उसमें आप उसको कोडिंग करके उसको फिर यू चेक ऑन द पैरामीटर्स लाइक हाउ इट हैज परफॉर्म. इसके अलावा और क्या चीजें हैं? Backtesting is nothing but a simulation, right? It is a simulation of the real life situation. So real life में हम क्या फेस कर सकते हैं, ये उसी का it is just an attempt to understand how will it perform in the real life market. क्योंकि real life में हम अगर डायरेक्टली पैसा डाल देंगे तो उसमें अगर नुकसान हो जाएगा, so that is not required, that is not desirable, right? तो इसलिए हम हमेशा चाहेंगे कि उसको जो है ना एक पेपर ट्रेडिंग कर लें, एक मॉक रन कर लें, उसमें हमको जितना मर्जी हम पीछे का डेटा लेके हम उसको देख सकते हैं कि हाउ इट हैज परफॉर्म विद द हिस्टोरिक टफ टाइम्स, लाइक 2008 में कैसा परफॉर्म किया, 2014 में जब मार्केट में रैली बहुत तेज चालू हुई तो तब उसने कैसे परफॉर्म किया, इवन ड्यूरिंग द रिसेंट कोविड टाइम्स हाउ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हैज परफॉर्म. सो वन विल वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैज एक्चुअली डन ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स. तो इस तरीके से एक है. इसमें और क्या चीज है? इसमें यह है कि रिक्वायर्स फ्यू थिंग्स. तो प्री रिक्विजिट की अगर हम बात करें तो हमको एक तो ये चाहिए होगा कि सबसे पहला कि हमारे पास में एक ट्रेडिंग लॉजिक होना चाहिए, राइट. वंस वी हैव अ ट्रेडिंग लॉजिक, दूसरा क्या होना चाहिए, हमारे पास में डेटा होना चाहिए, हिस्टोरिक डेटा, जो भी एसेट का हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं. लेट्स से अगर इफ आई एम वांटिंग टू टेस्ट एनी स्ट्रैटेजी ऑन निफ्टी व्हिच आई थिंक वर्क्स, तो हम क्या करना है, हमको निफ्टी का एक हिस्टोरिकल डेटा ले लेना है, लंबा डेटा, जितना लंबा उतना अच्छा, राइट. और इसके साथ जो तीसरा चीज हमको जो चाहिए होगा वो ये है कि थोड़ा सा हमको कोडिंग का अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, राइट. सो फर्स्ट थिंग, ये ट्रेडिंग लॉजिक, जस्ट 1 minute, let me just pick up the pen. Yeah, so एक हमको ये ट्रेडिंग लॉजिक चाहिए, दूसरा इज व्हाट वी नीड इज अ हिस्टोरिकल डेटा, एंड तीसरा हमको ये थोड़ा सा कोडिंग आना चाहिए. सो वंस वी हैव दीज थ्री थिंग्स वी कैन डू अ कंप्लीट बैक टेस्टिंग ऑफ एनी स्ट्रैटेजी, है ना. अच्छा, अब बैक टेस्टिंग करें तो कैसे? इसके साथ हमको जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये पैरामीटर्स. हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी स्ट्रैटेजी को क्या क्या पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करेंगे, मतलब मापदंड, इसको हिंदी में मापदंड बोला जाता है. सो क्या क्या हमारे मापदंड होने चाहिए. सो आज एक्चुअली हम पूरा A to Z पूरा एक साथ हम इसी वेबिनार में पूरा हम कवर करने वाले हैं, बहुत क्विकली हम देखेंगे. सो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, गोइंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ मिनट. या सो अगला जो आता है पॉइंट वो है लाइव परफॉर्मेंस. सो एक हो गया बैक टेस्टिंग, जहां पे हम एक्चुअली किसी का रियल लाइफ ट्रेड नहीं देख रहे हैं, हम हिस्टोरिक डेटा, मेरे पास में एक लॉजिक है, उस लॉजिक को बस हम अपना टेस्टिंग करना चाह रहे हैं वेदर इट विल वर्क इन द रियल मार्केट और नॉट, और वो भी कैसे, हिस्टोरिक डेटा लेके, राइट. लाइव परफॉर्मेंस में ऐसा है कि यू आर टेकिंग द लाइव ट्रेड्स, इफ समबडी हैज टेकन रियल मार्केट में, अगर किसी ने ट्रेड लिया था और उनका जो पीएल या प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट बनेगा, कितने ट्रेड लिए, कितने सही पड़े, कितना पैसा बना या लॉस हुआ या जो भी है, सो ऑल ऑफ इट लाइक द रियल एक्चुअल ट्रेड बुक, तो वो हो गया आपका लाइव परफॉर्मेंस. और लाइव परफॉर्मेंस का भी इवेल्युएशन हम सेम पैरामीटर्स के ऊपर ही करेंगे. तो मेरा टेस्टिंग करने का तरीका चाहे हिस्टोरिक डेटा के ऊपर बेस्ड हो, थोड़ा सा मॉक टाइप का हो, या किसी के रियल परफॉर्मेंसेस पे हो,
पैरामीटर्स हम वो सेम लेंगे। इसके साथ दोनों केसेस में एक चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि इन बोथ द केसेस जितना बड़ा डेटा होगा उतना अच्छा। सो द लॉन्गर द डेटा द बेटर इट इज। चाहे आप हिस्टोरिकल डेटा लेके आप बैक टेस्टिंग करें तो उसमें भी आपको जितना अच्छा मतलब लंबा डेटा मिलता है उतना आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा कि ये हर मार्केट साइकिल में इसने कैसे काम किया। सिमिलरली किसी का भी अगर आप परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सोचते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं, तो अगर आप पूछते हैं कि भाई आपका क्या है, मतलब कितने कॉल्स आपके सही पड़ते हैं, आपने कैसा परफॉर्म किया था, व्हाट हैज बीन द एक्यूरेसी ऑफ योर ट्रेड्स, पैसे बने भी या नहीं। सो ऐसे में आपको खाली ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई 2020 से आप मेरे को बताइए, राइट? बिकॉज 2020 अगर कोविड के पहले हो सकता है कि उसमें लॉस हो क्योंकि मार्केट बहुत जोर से गिरा था। उसके बाद जब मार्केट बढ़ना चालू हुआ तो किसी का भी आप उठा के देख लीजिए बैलेंस शीट बुक, मतलब पॉजिटिव भी होने वाला है, राइट? सो ये एक पर्टिकुलर पैचेस में अगर हम किसी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो इट मे नॉट गिव मी द राइट पिक्चर, राइट? इसके लिए जितना ज्यादा हम डेटा ले लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। सो नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आर द की पैरामीटर्स। तो जब हम पैरामीटर्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा ग्लिम्स में एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। सो इसमें से तो देखिए आप स्ट्राइक रेट सबसे पहले, राइट? तो स्ट्राइक रेट के बारे में तो आई एम श्योर कि आप लोग मतलब जानते ही होंगे। सो स्ट्राइक रेट का मतलब ये होता है कि आपके कितने ट्रेड्स सही पड़े हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर ट्रेड्स गोइंग राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 70% स्ट्राइक रेट, तो 70% का मतलब ये होता है कि 70 आउट ऑफ 100। तो अगर किसी ने 100 ट्रेड लिए हैं तो आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 70 आर एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव, करेक्ट? इसका मतलब यही है। अच्छा, आई थिंक यू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड का मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉफिट एक्स अमाउंट का है तो उसके सामने में आपका रिस्क कितना है, राइट? सो लेट्स से अगर रिस्क रिवार्ड किसी का मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई 1 रुपए रिस्क लेता है ना, 1 रुपए का रिस्क लेता है फॉर अ दिस इज रिस्क, है ना? सो फॉर अ 1 रुपी रिस्क फॉर अ गेन ऑफ 3 रुपीज, तो ये केस में फिर आपका रिस्क रिवार्ड कितना हो गया? 1:3। सो आप 3 रुपए कमाने का आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ रिस्क। सो जनरली ये रिस्क रिवार्ड हम इसी मतलब पैरामीटर पे हम मेजर करते हैं। तो आई थिंक दीज टू थिंग्स यू अंडरस्टैंड, या लॉट ऑफ यू विल ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ। बट इसमें बात ये है कि क्या हमको खाली ये स्ट्राइक रेट, है ना, क्या ये स्ट्राइक रेट और क्या ये रिस्क रिवार्ड ही कैन इट एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट माय परफॉर्मेंस? द आंसर इज नो। एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रैटेजी है जिसका यहाँ पे एक स्ट्राइक रेट हम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रिस्क रिवार्ड, राइट? सो एक स्ट्रैटेजी का स्ट्राइक रेट लेट से 50% है, मतलब 50% ट्रेड ही सही पड़ेंगे, 50% गलत पड़ेंगे। अब इसमें जब लॉस होता है, सो लेट से लॉस होता है 5 रुपए का, -5, ठीक है? और जब गेन होता है तो गेन होता है आपका 10 रुपए का, ओके? सो दिस इज वन सिनेरियो, ये हम लेते हैं, दिस इज केस नंबर 1। नाउ द सेकेंड could be another scenario where I have a strike rate of say 70%, ओके? और यहां पे मेरा जो रिस्क है वो है 3 रुपए का, और मेरा रिवार्ड भी जो है वो है लेट से 4 रुपए का। सो अभी नाउ इफ आई आस्क यू कि आउट ऑफ दीज टू सिस्टम्स विच वन इज बेटर, पहला
नंबर 1 या नंबर 2, कौन सा? तो अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ें तो देखिए यहाँ पे जब हमको लॉस होगा ये पहले वाले सिस्टम में, सो हम 5 रुपए का नुकसान कर रहे हैं, और जब गेन होगा तो 10 रुपए का। सो अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, सो 10 ट्रेड के बाद आप इक्वेशन समझिए, यहाँ पे 10 ट्रेड के बाद मेरे को एक्चुअली ये वाले सिस्टम में 25 रुपए का टोटल नुकसान होगा, क्योंकि 5 लॉस मेकिंग होंगे और बाकी 5 ट्रेड में मेरे को 50 रुपए बनेंगे, करेक्ट? सो नेट में यहाँ पे मेरा गेन आएगा +25। अब अगर दूसरे सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे मेरे को 7 ट्रेड्स आउट ऑफ 10, यहाँ पे 5 आउट ऑफ 10 का हिसाब था प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 है। तो यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 है, तो इसका मतलब मेरे को जो प्रॉफिटेबल होंगे वो 7 होंगे। सो 7 ट्रेड्स में आई एम गोइंग टू बी मेकिंग कितना? 7 into 4। सो यहाँ पे मेरे को टोटल 28 रुपीज बनेंगे, राइट? सो आई विल बी मेकिंग +28 ऑन द प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, और जो लॉस होंगे वो मेरे 3 लॉस होंगे, और उसमें मेरे को 12 रुपए का लॉस होगा, करेक्ट? सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्चुअली दोनों सिस्टम में तो यहाँ पे मेरा नेट कितना बना? +26। तो देखिए एपरेंटली किसी को भी अगर आप इन जनरल पूछेंगे तो ये वाला सिस्टम उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि यार मतलब द फर्स्ट वन डजंट लुक दैट नाइस मे बी, सो दिस वन लुक्स प्रीटी कूल, क्योंकि यहाँ पे 70% का भी स्ट्राइक रेट है, रिस्क रिवार्ड भी ठीक ही ठाक है। सो आई थिंक दिस इज वन इज मच बेटर देन दिस वन। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जब आप ये सिंपल सा गणित जोड़ेंगे तो आप देखिए दोनों सिस्टम में एक्चुअली बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी 10 ट्रेड के बाद 25 रुपए बना रहे हैं, और ये भी आपको 10 ट्रेड के बाद 26 रुपए ही बना रहा है। सो इट इज वेरी क्लोज। इट डज हैव अ marginal edge, but not much, right? So दिखने में हमको चाहे कुछ भी कितना अट्रैक्टिव लगे या अनअट्रैक्टिव लगे, एक्चुअली जब तक हम कुछ पैरामीटर्स को तोड़ के नहीं देखेंगे तब तक हमको पूरा क्लैरिटी नहीं आएगा। सो दिस वाज अबाउट द ओनली फर्स्ट 2 फैक्टर्स, द स्ट्राइक रेट एंड द रिस्क रिवार्ड रेशियो, राइट? अभी हम आगे और कॉम्प्लिकेटेड अगर इसको थोड़ा सा करना है या और अगर अंदर घुसना है इन सब चीजों के, सो ओनली रिस्क रिवार्ड एंड स्ट्राइक रेट डजंट से एनीथिंग, यहां तक तो आप जानते हैं ऑलरेडी, एंड दीज आर वेरी एलिमेंटरी थिंग्स। सो और आगे क्या है? सो पहला आ जाता है आपका एक सिंपल सा है, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई विल शो यू एवरीथिंग। प्रॉफिट फैक्टर। प्रॉफिट फैक्टर का मतलब सिंपल ये बात है कि आपका टोटल जो गेन हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल जो आपका लॉस है, ठीक है ना? सो इससे आपको ये रेशियो आपको ये बताता है कि ओवरऑल आपका जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्ट्रैटेजी का अगर 1.2 आ रहा है प्रॉफिट फैक्टर, इसका मतलब ये है कि उसमें कुल 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ रहेगा टोटल ग्रॉस, और 10 रुपए का लॉस हुआ रहेगा, एंड देयरफॉर इट इज 1.2। अब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिस्क रिवार्ड? देखिए रिस्क रिवार्ड में क्या है ना, रिस्क रिवार्ड में जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे इसी केस में अगर आप ये देखें कि एक स्ट्रैटेजी में आपका 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सो लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग, आई विल जस्ट शो यू वंस अगेन। Yeah. So on one strategy, let's say you have a gain of 5 rupees and a loss of 10 rupees. In another strategy, you have a gain of 30 rupees versus a loss of 60 rupees. या इसको मतलब I've just kept it the other way around, मतलब यहाँ पे गेन कम है, लॉस बड़ा है, so whatever be it, so दोनों में ही 0.5 का है,
है ना, मतलब आप 5 रुपए के लिए 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो। यहाँ पे भी वही एक ही बात है, रेशियो के हिसाब से बोथ ऑफ देम आर एट 0.5, राइट, द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बट जब आप इसको एक ओवरऑल ह्यूमिलिटी बेसिस पे देखेंगे तो आपका जो टोटल गेन हुआ है, टोटल गेन और टोटल लॉस, ये हमको दो अलग अलग अमाउंट दिखेगा। क्योंकि इसमें जब आप देखेंगे तो अगर आपको 5 रुपए का लेट से फायदा हो रहा है, तो 5 रुपए के हिसाब से आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो ऑब्वियसली 50% ट्रेड सही पड़े हैं, सो यू विल बी मेकिंग हाउ मच, 25 रुपीज, राइट। बट दूसरे वाले में जहां पे बहुत बड़ा था, जहां पे आपका 30 रुपीज का गेन था, तो वहां पे आपको 150 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, करेक्ट। सो the amount of gain in one strategy, I'm total gaining 25 rupees, and in another strategy I'm gaining a total of 150 rupees, right। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट फैक्टर हमको एक हल्का सा ये भी बता देता है कि whether the overall strategy ended up profitable or not। चौथा पॉइंट आ जाता है जैसे ड्रॉडाउन। सो व्हाट इज ड्रॉडाउन? ड्रॉडाउन इज अ वेरी सिंपल थिंग। ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि मेरा जो पीक कैपिटल बना था वहां से मैं कितना नीचे मैक्सिमम आ रहा हूँ। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मैक्स ड्रॉडाउन एंड अ ड्रॉडाउन। सो ड्रॉडाउन मतलब आप ऐसे समझिए कि इफ दिस इज लेट्स से योर लेजर बैलेंस, ये आपका लेजर बैलेंस है। हालांकि ये स्टॉक प्राइस जैसा दिख रहा है, बट लेट्स से यू हैव बीन प्रॉफिटेबल एंड दिस इज हाउ योर लेजर बैलेंस हैज लुक लाइक, है ना। सो ये आपका लेजर बैलेंस मैंने बना दिया, ठीक है ना। नाउ लेट्स से ये पॉइंट से जब आपने जर्नी चालू किया, सो दिस वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। सो से फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड विथ 1000 रुपीज, ठीक है ना, एंड देन योर कैपिटल केप्ट ऑन ग्रोइंग, और यहाँ पे आप जो है फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट यू आर एट अ गेन ऑफ से आई मीन टोटल कैपिटल हैज बिकम 3000 रुपीज। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हर बार जो ये यहाँ से बढ़ने के बाद में एक डिप आया, यू नो, आपके कैपिटल में, सो ये डिप कितना था? सो लेट्स से इफ दिस वाज समथिंग अराउंड से 1300, right, and then you went down to 1200, so this was a drop of 100 rupees, right। so ये एक आपके कैपिटल में डिप आया। अच्छा, यहाँ पे भी आप लेट से यहाँ तक आपका कैपिटल पहुंच गया था 2000 रुपीज पे, एंड नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट योर कैपिटल गोज डाउन अप टिल दिस पॉइंट, एंड दिस इज से 1600 रुपीज, ओके। सो यहाँ पे आपका 400 रुपए आपके पी कैपिटल से फॉल आया था। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एक फॉल आया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देयर वाज अ फॉल, यू नो, दिस वन। सो लेट्स से दिस वाज आल्सो अ ड्रॉप ऑफ 300 rupees from your total profit. This was also a drop. So this was, let's say, आपका peak capital actually अभी तो आप 3000 रुपए पे हैं, but your peak capital went up to let's say 3300. Okay, so from 3200 now you have come down to 3000. So let's say this point is your 2800. So आपने अभी थोड़ा सा रिकवरी भी कर लिया है। Okay, so you had a drop of 500 rupees from your peak capital at this point. So ये every drop that you are able to see, you know, every time your capital went to a new high, और वो न्यू हाई से आपकी कैपिटल में जितना भी जब भी जो ड्रॉप आया है ना, सो टू बी प्रिसाइज यहाँ पे आपका 100 रुपए का फॉल आया था, एंड देन यहाँ पे आपका 400 रुपए का फॉल आया था, राइट, एंड देन दिस वाज द लास्ट वन। सो अब अगर हम हर ये फॉल को परसेंटेज में एक्सप्रेस करें, ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपका 500 रुपए का गिरावट आया ऑन 3300 फ्रॉम 3300 which was your peak capital. So in percentage terms, this will be I think what, like 15% fall, okay. So this fall in your capital would have been something around 15%. अच्छा, यहाँ पे भी आपका let's say there was this price was for example
let's say around 2500, and then you went down 300 rupees, so you went down to 2200, है ना? So this was again like a drop of 12%. कैसे 12%? आपका 300 रुपए का ड्रॉप हुआ कैपिटल में फ्रॉम द पीक कैपिटल ऑफ 2500, right? I hope I have just done the math right. I think this works out to 12%, right? So my drop in capital was 12% in this particular case, this one, है ना? Similarly यहाँ पे अगर मैं 2000 रुपए से 1600 रुपए आ गया, so my drop in capital was 20%. So every time यहाँ पे आप जैसे 1300 पे मतलब I think this should be somewhere around like let's say 7%, just giving a rough number. So every time we can see that there is a drop in my capital. So हर बार जो peak capital मेरा था उसमें से मेरा drop आया है, and the highest drop of all of these is called the max down. तो ये जो individual drops है इनको हम drawdown बोलेंगे, और जो maximum है, जो maximum था इन सब में से, so that is called the max drawdown, right? So इन सब में maximum कितना था? I think if we had a drawdown of I think the drawdown numbers were, let's say, -7%, okay, and then we had, let's say, -12%, then -15%, okay, and then let's say we had minus some random number, -18%, और एक आप मान लीजिए एक माइनस लास्ट में 15% अगेन, ओके. सो आउट ऑफ दीज जो भी मेरे ड्रॉप आए हैं, इसमें से जो सबसे बड़ा ड्रॉप है, which is this one in this case, so this will become my max drawdown, max DD, ठीक है. और ये हर हम इंडिविजुअल ड्रॉप्स को जो है ना, every individual drop will be called as a individual drawdown. So drawdown का मतलब ये नहीं है कि मैं कैपिटल कितना लूज कर रहा हूँ. ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि मैंने एक बार जो पैसा बना लिया था, whatever was my maximum amount of money that I had paid, है ना, वहां से मेरे को कितना ड्रॉप हो रहा है, that is. And then what is the next point? The run of losses, right? So run of losses, तो मेरे को ये भी जानना जरूरी है कि एक एनी स्ट्रैटेजी या कोई भी किसी के भी एडवाइस पे मेरे को मैक्सिमम कंसेक्यूटिव लॉसेस कितने हो सकते हैं. सो लेट्स से ये पहला ट्रेड आई एम टेकिंग, ये दिस इज फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये मैंने 10 ट्रेड ले लिए. ओके, नाउ लेट्स से ये पहला वाला वाज प्रॉफिटेबल, पॉजिटिव, सेकंड वाला वाज नेगेटिव, ठीक है ना, दूसरा वाला वाज अगेन नेगेटिव, बट तीसरा वाला बिकेम पॉजिटिव, चौथा वाला पॉजिटिव, एंड देन अगेन आई हैड नेगेटिव, नेगेटिव, दिस वन आल्सो नेगेटिव, एंड देन फॉलोड बाय 2 पॉजिटिव, ठीक है ना. सो ये वाले केस में अगर आप देखेंगे, देयर आर 2 पैचेस ऑफ नेगेटिविटी. ये एक पैच, यहाँ पे बैक टू बैक 2 ट्रेड में मेरे को लॉस हुए थे, एंड देन दिस वाज अगेन अनदर पैच जहां पे मेरे को बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस हुए थे. हालांकि ये 2 पैचेस को अगर आप देखें तो ये एक्चुअली टोटल 6 ट्रेड में मेरे को 5 ट्रेड में नुकसान हुआ है आउट ऑफ 6. खाली ये बीच में एक ये प्रॉफिटेबल हो गया था, है ना, वरना like I lost money in 6 out of 5 out of 6 trades, correct? So यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर मेरे को रन ऑफ लॉसेस अगर बहुत ज्यादा बैक टू बैक अगर होते रहे, सो इसमें 2-3 चीज हो जाता है. एक तो ये है कि साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि वेदर माय स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली वर्किंग और नॉट. यू विल फील दैट मे बी मार्केट चेंज हो गया है, या मेरे को कुछ और अपने चेंजेस करने हैं, या आई एम नॉट लाइक एट माय बेस्ट, पता नहीं क्या हो रहा है, राइट? सो ऑल दिस क्वेश्चंस विल कम, बट इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर, इफ यू हैव सीन ऑल दीस थिंग्स इन योर बैक टेस्ट, कि
कि हाँ भाई मेरे को मेरे स्ट्रैटेजी में रन ऑफ लॉसेस नॉर्मली 2 से 3 होते हैं, बट ऐसा भी हुआ है जहां पे मेरे को 7 या 8 ट्रेड भी बैक टू बैक लॉसेस गए हैं, एंड डिस्पाइट दैट द सिस्टम हैज डिलीवर्ड रिजल्ट्स। तो अगर आपने ये हिस्टोरिकली पहले अगर आपने देखा होगा, सो दैट एक्चुअली विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस टू स्टिल बिलीव इन योर सिस्टम व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट। देखिए क्या होता है ना, बैक टेस्टिंग में जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आपको कोई प्रेशर नहीं होता है, बिकॉज यू आर नॉट डिप्लॉइंग योर रियल कैपिटल, यू आर जस्ट ओनली डूइंग अ मॉक ट्रेडिंग और सिमुलेटेड ट्रेडिंग। तो उसमें टेंशन का क्या है, कुछ नहीं है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है हमको, तो ना ही कोई ह्यूमन एलिमेंट ऐड होता है। जैसे किसी के रियल परफॉर्मेंस तो आप कभी भी बैक टेस्टिंग से एकदम एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक बैक टेस्टिंग होता है तो वो बहुत मतलब क्या है, उसमें कोई ह्यूमन फैक्टर तो है नहीं, उसमें आप वो चीज काफी बाहर हो जा रही है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रियल लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं, those things are not included in back test, they are very difficult to be implemented or discounted, है ना। बट एक रियल किसी का अगर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है, वो उसमें उसके सारे चीजें डिस्काउंटेड है, राइट। जैसे उसने अगर बैक टू बैक अगर 5 ट्रेड में भी लॉस किया होगा, एंड देन अगर उसमें से फिर उसने स्टिल ही हैज रिकवर्ड हिज कैपिटल एंड मेड मनी एंड गॉन टू अ न्यू टेकन हिज पोर्टफोलियो टू अ न्यू larger base, so then that is credible, right। so कितने बार आप लॉसेस के बाद आप उसको रिकवर कर ले रहे हैं और आप वापस नए कैपिटल पे लेके जा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, कितने मार्केट में डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं। तो इफ दीज थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन योर ट्रेडिंग दैट हिस्ट्री, सो दैट इज अ लॉट ऑफ क्रेडिबल थिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो रन ऑफ लॉसेस का जो सीक्वेंस है ना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल, क्योंकि ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, हाँ ठीक है 3 ट्रेड लॉस होगा, चौथा वाला भी मैं कर लूंगा, बट इट इज वेरी इजी सेड देन डन। बिकॉज जब चौथे बार आप ट्रेड लेने जाएंगे ना, तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये ट्रेड सही होगा, वापस इतना लॉस है पहले से, अभी ये इसमें लॉस हो गया, तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, which is actually not right, but they will come being human. So एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का तो स्किल यही होता है कि he forgets about what has happened in the previous trade, right? He doesn't think what has happened in the past, he only would judge anything based on the current situation, बराबर। so run of losses, खैर हमको मतलब we should be aware of how many times we have lost in the as a bad patch, how many times we had, and what has been the length of that patch, so all these things. Now the other thing is, the one number that I wanted to discuss today was also Sharpe ratio. Generally जब हम कोई भी मतलब किसी की भी स्ट्रैटेजी को कंपेयर करते हैं, so there are two एलिमेंट्स ब्रॉडली। एक तो हो गया आपका रिटर्न का सारा मतलब पैरामीटर, और दूसरे क्या होता है कि रिस्क के पैरामीटर्स। तो जब तक आप ये रिस्क और रिटर्न के पैरामीटर्स को एक साथ दोनों एप्पल टू एप्पल मतलब कंपैरिजन के लिए जब आप उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, तब तक आप दो स्ट्रेटेजी को सही मायने में एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से इफ आई एम एन ऑप्शन ट्रेडर, ओके, व्हिच मींस I'm doing a trade which are by default very risky in nature, ठीक है। So let's say if I as a trader come and tell you, sir, I have made 20% in a year trading options, ठीक है। Now there is another guy who comes in and says, okay sir, I have delivered 20% तो नहीं, but I have delivered less, I have delivered let's say 10%, ठीक है। But what am I did only bond trading, right? So bond is not like options, ठीक है। So वहां पे आप let's say you have deployed your capital and you have made by pure investment in debt assets and you have made 10%. तो एक person is saying I have made 20% trading options in equities, the other person is saying that I have made 10% ट्रेडिंग डेट मार्केट। तो ऑब्वियसली आप ये समझ पा रहे हैं कि जो डेट मार्केट वाला है उसमें रिस्क बहुत ही कम है ना, बहुत कम रिस्क है। और जो दूसरा ऑप्शन वाला है
जो लेट्स से इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करके उसने 20% बनाया है, तो ये आपको नेचुरली ही लग रहा होगा ऑलरेडी कि 20% रिटर्न इज एक्चुअली वेरी लेस, यू नो, और सो टू से इफ दैट गाय हैज डिलीवर्ड 10% ट्रेडिंग बॉन्ड्स, तो बहुत ही अच्छा है। डेट मार्केट में बहुत रिस्क कम होता है, तो उसके हिसाब से जब आप रिस्क को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि यस, कंपेयर टू 20%, even 10% is also not bad, है ना? So Sharpe ratio is one particular number that would discount the risk involved in any strategy. क्योंकि जब हम रिटर्न की बात करते हैं, सब लोग आके स्ट्राइक रेट के बारे में बोलेंगे, आपका रिस्क रिवार्ड के बारे में बोलेंगे, but these two things only, as I said, they don't actually reveal the true picture or everything. They only talk about certain things, but not totality. So, एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के लिए शार्प रेशियो एक इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमन नंबर है, जिसके साथ आप कोई भी किसी भी टाइप के स्ट्रैटेजी को एक के साथ दूसरे को आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना? क्योंकि उसमें रिस्क का एलिमेंट भी एडजस्टेड हो जाता है। तो कोई अगर ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न बना रहा है, एंड उसके सामने में कोई अगर किसी ने अगर लेट्स से ज्यादा रिस्क लेके कम रिटर्न डिलीवर किया है, तो वो फर्क आपको एकदम क्लियरली नजर आ जाएगा। So इसके साथ आगे बढ़ते हैं, and let's actually see how can we develop a system, and we will see it from the एकदम बेसिक। तो हम एक एक्सेल फाइल में सिंपल सा ये करेंगे कि हम एक सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी लेंगे, एंड हम उसको कोड सिंपल तरीके से एक्सेल में एकदम जस्ट 2-4 फॉर्मूला के साथ में हम उस स्ट्रैटेजी को बना देंगे, और फिर जो है हम उसके ऊपर सारे ये लाइव जो भी पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, वी विल बी एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग ऑल ऑफ इट। तो लेट मी जस्ट ओपन द एक्सेल फाइल। सो जब तक ये एक्सेल फाइल खुले, सो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज को अगर हम बैक टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ बैक टेस्ट। हाँ, सो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? हमको सबसे पहले चाहिए एक स्ट्रैटेजी, करेक्ट? सो एज अ स्ट्रैटेजी आई हैव, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी। या, so I think you're able to see a paint on this thing, and okay, so I'm going to use a simple moving average crossover technique, and जिसमें हम क्या करेंगे, 2 सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ले लेंगे, है ना? और हमारा लॉजिक बाय करने का बहुत सिंपल होगा। हमारा सिंपल लॉजिक ये है कि हमारे सामने में देयर विल बी 2 मूविंग एवरेजेस, ठीक है ना? एक शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? सो 2 मूविंग एवरेजेस हम लेंगे। 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 पीरियड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन इज 2 डिफरेंट टाइप्स। सो वन इज अ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होगा, लॉन्ग टर्म में इसको आई एम राइटिंग, एंड द अदर वन विल बी अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, राइट? सो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में हम ये करेंगे कि कोई भी एक पीरियड हम ले लेंगे, चाहे 5 हो या 10 हो, है ना? एंड लॉन्ग टर्म के लिए हम एक लेट्स से 20 से हम चालू कर सकते हैं। सो वी विल जस्ट ट्राई टू बिल्ड अ क्रॉसओवर सिस्टम। सो क्रॉसओवर सिस्टम में हम ये अगर सोचें कि आई विल बाय व्हेनेवर द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, लेट्स से दिस इज द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, है ना? शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ये थोड़ा सा ज्यादा कर्वी होगा, सो आई एम ड्राइंग अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ओके? सो लेट्स से दिस ब्लैक कलर लाइन इज माय short term moving average. So I will buy whenever the short term moving average goes above my long term moving average. So let's say my long term moving average is red colored, है ना? So I'm drawing the long term moving average along here. So मेरा मान लीजिए long term moving average ये कुछ ऐसा था, and this is where I got a buy signal, right? And ये long term moving average मेरा ऐसा चल रहा है, and gradually ऐसे करते ये यहाँ पे मेरे को एक क्रॉसओवर भी आ गया। So basically I would have got a buy signal here, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, this would have crossed the long term red colored
moving average. So this is where I would have got a buy signal, right? So यहाँ पे मेरा buying entry होगा and I will remain long as long as my short term moving average actually keeps on trading above the long term moving average. So as long as the long term moving average नीचे है और short term ऊपर है, हम अपना long position पकड़ के रखेंगे. So let's assume that this is our logic. And exit कब होगा? Exit तब होगा जब ये short term moving average वापस से long term moving average के नीचे आए. So this is the point where I am exiting, right? So यहाँ पे मेरा जो long था वो हमारा exit हो जाएगा. ये exit. Sorry. Okay. So this is what is my exit point. और यहाँ से जो भी मेरा buying price और जो selling price का difference हो रहा है, that is going to be my differential. So इसको अगर हम Excel में implement करने का कोशिश करें, it is very simple. So I'm just going to open the Excel file for you. Let me just open. Yeah. So yeah. Right. So I've just opened a blank page for you, and so the first thing that I would require is the price history. Correct. So I'm just going to take Nifty data. हम Nifty का एक जो है ना काफी लंबा 2006 है. I'm going to pick up a data and we will simply ये I think you are able to see. Yeah. So यहाँ पे हमने क्या किया है 2006 से जो है ना Nifty का data I have pulled in. So let me just freeze the top row. Okay. So now my first job ये up till recent है 31st Jan 2022 है ना. यहाँ तक हमने डेटा ले लिया. Now once the raw data is there, which is my open, high, low, close. Okay. What is my next step? My next step in this crossover system will be actually to build the two moving average in the subsequent column. So यहाँ पे हम जो है ना moving averages को भी calculate करेंगे. So I am just writing this as a short term EMA, SEMA, short term exponential moving average, and I'm also taking a long term EMA. तो ये दो जो columns हैं यहाँ पे हम short term moving average और long term moving averages को हम calculate करेंगे. Okay. So ये एक और हम पहले ही शीट एक बना लेते हैं जहां पे हम अपने सारे पैरामीटर्स को हम यहाँ पे डालेंगे. And this is what I will call as a data sheet, and this is para, which is parameters. So पहला, let's say if I have a short term EMA, तो हम any number I'm just taking let's say 10, okay, and long term EMA I'm taking as let's say 20. So these are my EMA periods. So for those who are like new to these concepts of exponential moving averages, let me just make you understand this. ये जो एक पीरियड होता है जिसमें हम लेट्स से डेज बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक टाइप का वेटेज है ना. तो ये वेटेज का फॉर्मूला कैसे होता है, ये एक्चुअली सिंपल है बहुत. अगर आप मान लीजिए लेट्स से 9 डे अगर आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली आप एक सर्टेन परसेंटेज वेट जो है ना आज के प्राइस को दे रहे हैं, और बाकी जो बैलेंस वेटेज बचेगा वो आप पिछले दिन के मूविंग एवरेज को दे रहे हैं. सो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो आपका नया मूविंग एवरेज देगा. सो वेटेज का फॉर्मूला सबसे पहले हमारा यही है कि वेटेज को निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के केस में द फॉर्मूला इज, ये 9 का मतलब ये होता है कि इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई n+1, मतलब 2 डिवाइडेड बाई ये 9 + 1, मतलब ये जो है ना ये एक्चुअली
20% वेटेज देगा। किसको? ये 20% वेटेज देगा आज वाले डेटा को। तो ये जो भी क्लोजिंग प्राइस है करंट प्राइस को, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म ईएमआई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज इक्वल टू दिस प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ये वाला वेटेज। और इसके साथ में क्या होगा? जो बैलेंस वेटेज बच रहा है, बैलेंस मतलब 80%, सो 80% कैसे करेंगे? 80% को हम ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस जो बैलेंस बचा, सो 1 माइनस 20% कर दिया हमने, तो ये बैलेंस वेटेज हो गया इनटू द प्रीवियस डेज मूविंग एवरेज। तो प्रीवियस डे का मूविंग एवरेज हमारा ये वाले बॉक्स में आएगा, करेक्ट? तो हमने ऐसे करके कर लिया। सो अभी यहाँ पे प्रीवियस डे का मूविंग एवरेज तो है नहीं, क्योंकि ये तो ब्लैंक है पूरा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के लिए जो है ना, हम ये पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस को ही हम अपना मूविंग एवरेज मान सकते हैं फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। क्योंकि होता ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज एवरेजेस एक्चुअली विल एडजस्ट इवन इफ यू हैव स्टार्टेड विद अ रैंडम नंबर। हमने यहाँ पे दोनों ही एक रैंडम नंबर ले लिया है ना, ये एक्चुअल एवरेजेस तो है नहीं, बट हमने एक अपने स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमने एक ऐसे रैंडम से एक ले लिया, we just have picked up a random number and we have picked up the closing price to be the exponential averages. तो मेन मुद्दे का बात यह है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हो या लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हो, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होता है कि एक वेटेज हम देते हैं। कौन सा वेटेज? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ 2/n+1, ये वाला वेटेज आ जाता है करंट डेटा पे, और जो पिछले दिन का मूविंग एवरेज होगा ना, जैसे कल भी कोई मूविंग एवरेज रहा होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस वेटेज से। सो बैलेंस वेटेज आपका कितना? 80% होगा। यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करेंगे, मतलब आपका जो बैलेंस वेटेज बचा, सो दैट इज 80%। सो ऐसे नाउ ये सेम अगर हम यहाँ पे भी करें, सो अगर आप लॉन्ग टर्म में 20 ले रहे हैं, 20 पीरियड, इसका मतलब ये है कि इट इज एक्चुअली 2 डिवाइडेड बाई 20+1 मतलब 21। सो बेसिकली ये लगभग 10% से थोड़ा सा कम है, 9.5 टू बी प्रिसाइज, डेसिमल से अगर हम ले लें। सो दीज आर द एक्चुअल वेटेजेस, है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ओके, और ये बैलेंस वेटेज बच रहा है। सो बैलेंस वेटेज जाता है पिछले दिन के मूविंग एवरेज को, और ये करंट वेटेज आएगा आज के प्राइसेस को। ओके फाइन। इसके साथ में हम एक और चीज कर लेते हैं, हम एक इनिशियल कैपिटल भी पकड़ लेते हैं, हमारा फंड साइज, है ना। सो इनिशियल कैपिटल हम, क्योंकि एक मतलब सॉर्ट ऑफ टोटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, तो हमको एक कैपिटल अज्यूम कर लेना पड़ेगा। सो लेट्स से आवर कैपिटल इज 10 लाख रुपए। आई होप द जीरोस आर करेक्ट। हाँ, सो 10 लाख रुपए। ओके, नाउ आ जाते हैं इस पेज में। सो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म ई में फिलहाल हम यहाँ पे एक 9 ले लिया है। सो वी कैन चूज एनी नंबर। सो वॉट एवर नंबर वी चूज, दिस शीट विल चेंज। सो दिस इज द शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मूला इज द करंट प्राइस इनटू वेटेज। वेटेज इज ये वाला प्लस जो पिछले दिन का डेटा था, विच इज दिस वन, इनटू बैलेंस वेटेज। सो बैलेंस वेटेज इज 1 माइनस इसका ये 9.5, है ना। So this is how it is. Okay. So let me just freeze the cells ताकि हम इसको ड्रैग कर पाए। Okay. हाँ, so एक बार चेक कर लेते हैं। क्लोज प्राइस इनटू हमारा वेटेज प्लस बैलेंस वेटेज इनटू प्रीवियस डे सीएमए। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हमने क्लोज प्राइस इनटू पैरामीटर शीट से हमने वेटेज ले लिया। ओके, सो दीज आर माय शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अब सिंपल हम इसको जो है ना ऐसे करके हम अगर कर दें, सो वी विल गेट द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। बराबर। नाउ अभी हमारा लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, तो तब तक हम बाइंग में बने रहेंगे।
है ना। तो इसको ट्रैक करने के लिए हम एक सिंपल सा चीज कर लेते हैं, हम एक डिफरेंशियल का एक कॉलम बना लेते हैं तो हमको इजी होगा। सो डिफरेंशियल इज क्या, शॉर्ट टर्म माइनस लॉन्ग टर्म। सो जब तक ये नंबर हमारा पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म वाला मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के ऊपर है, और जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक हम जो है ना, आई मीन वी विल बी होल्डिंग लॉन्ग्स, करेक्ट। सो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा फ्रीज करना कर रहा है, राइट। सो ये डिफरेंसेस हैं दोनों मूविंग एवरेजेस के। सो अभी आप देखिए यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी डाल देते हैं ताकि जो ग्रेटर देन 0 है वो हमको ग्रीन दिखेंगे, है ना। तो हमको मालूम रहेगा कि वी आर सपोज टू रिमेन लॉन्ग ड्यूरिंग दोज पैचेस, राइट। सो अभी इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है कि सिग्नल जनरेशन। तो ये जब तक ग्रीन दिखेगा, मतलब जब तक शॉर्ट टर्म इज ग्रेटर देन द लॉन्ग टर्म, आई एम गोइंग टू रिमेन लॉन्ग इन द मार्केट। तो पहली बार लॉन्ग हम कब करेंगे, जब ये शॉर्ट टर्म एक बार लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहा है, जब ये क्रॉसओवर आ रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पे हम एक सिग्नल का एक कॉलम बना लेते हैं। सो सिग्नल कॉलम में सिग्नल कैसे आएगा, सिग्नल कॉलम में आएगा एक लॉजिक के थ्रू, इक्वल टू इफ अगर दिस इज ग्रेटर देन 0, सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय बोलेंगे, ओके। और यदि नहीं रहा, मतलब if it is not greater than 0, then it will give me as no signal, no s, ns मतलब no signal, okay। so ये अभी अगर हम इस फॉर्मूला को ऐसे ही छोड़ दें तो यहाँ पे देखिए, ये जब तक ये है ना, ये बाय 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 दिखा रहा है, यू नो, इट इज शोइंग कंटिन्यूअस बाय, इट इज ओके, आई मीन एज लॉन्ग एज यू नो इट इज ओके, बिकॉज यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि हमको लॉन्ग बने रहना है। बट इसको थोड़ा सा भी अगर हम और अच्छा करना चाहें ना, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर प्रीवियस सिग्नल मेरा बाई चल रहा है, सो आई विल एक्चुअली फर्स्ट चेक कि पीछे का मेरा सिग्नल जो है ना, इफ दिस पर्टिकुलर सेल इज इक्वल टू बाई और नॉट, इफ दिस इज इक्वल टू बाई, अगर ये मेरा बाई रहा तो फिर मैं पहले ये चेक करूंगा कि मेरे को अभी सौदे को पकड़ के रखना है कि नहीं, वेदर आई शुड स्टिल रिमेन लॉन्ग और नॉट, है ना। सो इफ माय प्रीवियस सिग्नल इज इक्वल टू बाय, देन आई शुड एक्चुअली फर्स्ट चेक वेदर आई एम सपोज टू होल्ड द सिग्नल राइट नाउ और नॉट, करेक्ट। तो अगर होल्ड करके रखना है तो हम होल्ड लिखेंगे, नहीं अगर है तो एग्जिट हो जाएगा, करेक्ट। तो एग्जिट कब होगा, अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे आ जाए, मतलब जो डिफरेंशियल का कॉलम है वो अगर नेगेटिव दिखे। तो हमको एक्चुअली दोनों चीजें चेक करनी चाहिए कि इफ द प्रीवियस सिग्नल इक्वल टू इफ I3, मतलब जो प्रीवियस सिग्नल है, कॉलम I इज आवर सिग्नल कॉलम, सो इफ I3 इज इक्वल टू बाय, या हम इसको एक और डाल देना कि बाय हो, या तो I3 इज इक्वल टू होल्ड। इन आइदर ऑफ दीज टू कंडीशंस, इन आइदर ऑफ दीज टू कंडीशन, मतलब प्रीवियस सिग्नल मेरा बाय रहे या होल्ड रहे, इन आइदर ऑफ दीज टू कंडीशंस, व्हाट आई विल डू इज I will check if this particular value is still greater than 0 or not. If it is greater than 0, then I will still remain long, which means I will only write hold. और अगर नहीं है, then I will write exit, क्योंकि that will indicate कि मेरा पहले से सौदा चल रहा था and I have got a sell signal and therefore I will exit. Okay, so this is the complete logic. It just slightly modification. So I'll just copy this again and paste it here. So इसको आप पूरा ऐसे करेंगे, so it will. अभी आप देखिए, आपको शायद थोड़ा सा बेटर दिख रहा होगा. So because you are getting a buy here and then you are remaining hold as long as this is in green, and then जैसे ये रेड हुआ, you are getting an exit signal, right? So ये आपका सिग्नल कॉलम हो गया. Now what is the next thing? तो हमको जब सिग्नल आया तो we are only buying, so therefore I need to know the buying price, है ना. So buying price, so what will be my buying price? How will I record? Again, equal to if this is equal to buy, if this is equal to buy, then the current closing price is actually my entry point.
that is my entry price, correct? So this is going to give me the entry price. But if it is not a buy, then what I will do is I will simply write blank here. I will not display anything. Okay. Now, if I only write this logic of buy, then what if in case if hold comes? Then let's see what happens. अभी अगर हमने ऐसे छोड़ दिया, it is giving me blank. So this is I don't really like. So what I will do is, even if there is a buy, I mean there is a hold, मैं यहाँ पे भी ये buying price को ही display करवा देता हूँ. So for that I will just slightly make a small change. Equal to if this is equal to, then else, in this case, if this is box is equal to hold, or this box is equal to exit, in either of the situation, it will display me the previous price. So yeah, just a small comma. Just 1 minute. Let's check it. Then I else. Okay. Yeah. Yeah. This is it. So अभी देखिए यहाँ पे मेरे को पूरा जो बाइंग प्राइस है वो कंटिन्यूस बेसिस पे मिल रहा है. नाउ क्विकली मूविंग ऑन. अभी यहाँ पे एग्जिट प्राइस. सो एग्जिट प्राइस का अगर हमको लिखना है, बिकॉज दैट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट प्राइस आई एम एग्जिटिंग. सो व्हाट इज माय एग्जिट क्राइटेरिया? माय एग्जिट क्राइटेरिया इज सिंपल. जहां पे भी ये वाला बॉक्स में मेरे को एग्जिट दिखे, आई विल एग्जिट, है ना? सो जैसे इसको थोड़ा सा let me do a formatting. इसमें if the text is equal to buy, then I want to see a dark green. Okay, let this be bold, and let this be in green. Yeah, so ऐसे मेरे को buy दिख रहा है, and whenever there is an exit, let that be in red. Yeah, so now I can see where I am buying and exiting. So this is my buying price. So why this? Because this is the closing price it is. Now what will be my exit price? Exit price का क्या formula होगा? Simple, equal to if this box equals to exit, then in this case this is my exit price. Else just show me blank, show me dash. Yeah. See why I am showing you all this from the scratch? That is because so that tomorrow, in case if you have any any logic in mind or anything that you think will work in the market, you can use this as a framework, है ना? And the subsequent columns, they are like the the master grid of everything. So the buying selling logic could be different, they could be different altogether, but then the framework will remain with you. So that is the whole idea. Okay, it actually took me many years to decipher myself when I was doing it on my own. So it took a lot of time to get this framework. Okay, so this buying price, exit price. अब next क्या आ जाएगा? Next आ जाएगा मेरा PLN. PL इसका परसेंटेज टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं. ओके, तो इट इज वेरी सिंपल. अभी देखिए यहाँ पे मेरे को बाइंग प्राइस भी मिल गया, सेलिंग प्राइस भी मिल गया, एग्जिट प्राइस. सो माय PL परसेंटेज इज नथिंग बट इफ यहाँ पे अगर मेरे को एग्जिट दिखे तो ही मैं PL कैलकुलेट करूंगा, राइट? If this is equal to exit, then only I will calculate the PL. So which is this divided by buying price. So in percentage terms, this is my
P&L. Increase the decimals. Yeah. So just 1 minute. Okay. I've not given. अगर exit नहीं है तो फिर क्या? इसके लिए false आ रहा है. So अगर exit नहीं है, then you show me blank. Then don't display anything. Okay. Yeah. पूरा कॉपी कर देते हैं. So ये ऐसे आ गया. Right. Now जैसे कोई भी एक देख लेते हैं whether it is working or not. For example, last time we got a buy signal on say 3rd Jan. अब ये recent data है तो you will understand. 3rd Jan 2022. So this was the buying price 17,625. This price, yeah. So this price we got a buy, and why we got a buy? Because there was a moving average crossover, right? Because this is where the short-term moving average went above the long-term moving average. Yeah, and we remained long until this happened. जहाँ पे ये वापस से short term वाला नीचे आ गया. So जैसे नीचे आए, we got an exit. So our exit actually was at 17,277. So in this case, we entered at 17,625 and came out at 17,277. So we lost about 1.97%. So this is in percentage terms. So this will help us to understand later where things are going. अभी इसको हम एक काम करेंगे. इसको हमको एक जो है ना एक लेजर के फॉर्मेट में लेके आना है, wherein I'm not only looking at in terms of the PL numbers alone, I am also looking at in terms of the absolute amount. So for that, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि we are starting with an initial capital of 10 लाख. अब हम मान लेते हैं कि हम 10 लाख में जो है ना पूरा कैपिटल तो नहीं डालेंगे, because we need to keep provisions for our losses, correct है ना? So हमको losses के लिए भी provisions रखने हैं. So trade volume हम let's say अपना 70% ही पैसा लगाते हैं. Okay, so in this case we are only deploying 7 lakh rupees. ठीक है, which means even though we have put in 10 lakh rupees, but we are not deploying the full capital, because if we lose money, then the next trade will not be, say for example I took a trade of 10 lakh rupees. Now I lost 50,000 out of it. So the next trade cannot be of 10 lakh rupees, right? It has to be of lesser amount. It has to be a maximum of 9.5, because 50,000 रुपए तो लॉस हो गया पहले. So इसके लिए हमको अगर वो एक कांस्टेंट अमाउंट का कैपिटल हर ट्रेड में डिप्लॉय करना हो, जो कि कोई भी स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये एक सिंपल सा एक फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, जहां पे आप एक काम कीजिए, जो कैपिटल है ना वो फुल्ली डिप्लॉय मत कीजिए, उसका एक परसेंटेज कर लीजिए. सो लेट्स से I'm only deploying a certain percentage. So I'm writing this here, deploy percentage. So let's say it is 70%. Okay. So deploy percentage 70 मतलब ये हो जाएगा कि equal to this multiplied by this. मतलब हर ट्रेड में 7 लाख रुपए का ही ले रहा हूँ. This is what it means. Simple. Okay. So now that if I'm taking 7 lakh rupees trade, so how much profit amount will it convert? So PL amount अगर हम बात करें, so this is where if I have made this percentage of return, so वो 7 लाख के ऊपर में उतना percentage हो जाएगा, because every trade I am taking as 7 lakh, because 7 lakh is a good number even otherwise, because nowadays most of the index futures or any stock future is somewhere around 6 to 8 lakh या 7 lakh के range में है, right? Okay, so what will be the formula? Equal to, again, if this value is not equal to into whatever is the return percentage, that I will multiply with the trading value, which is this one, 7 lakh, है ना? तो यहाँ पे else back, yeah. So P&L amount, you see, it came straight, है ना? 7 लाख रुपए में आपका 2% का नुकसान हुआ है, तो लगभग 13,000 का नुकसान हो गया, right? Okay, so now this is where the PL amount was 11%. So we made about this much, है ना?
83। सो इस तरीके से ये हमारा P&L अमाउंट चल रहा है. नाउ लेट्स ऑल्सो कन्वर्ट इनटू लेजर बैलेंस. सो आई एम क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल लेजर बैलेंस. सो मेरा इनिशियल कैपिटल कितना होगा? मेरा इनिशियल कैपिटल तो यही होगा 10 लाख रुपए, द वन दैट आई स्टार्टेड विद, है ना. तो ये 10 लाख रुपए मेरे यहाँ पे आ गए. नाउ इसको अगेन हमको क्या करना है? लेजर बैलेंस जैसे जैसे हमको प्रॉफिट होगा वैसे वैसे हमको वो गाड़ी आगे बढ़ेगी. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रीवियस जो भी बैलेंस रहा है उसके साथ में करंट P&L. Just a minute. 0. Yeah. So this is how it is, and just 1 minute. हाँ. So 10 लाख रुपए अभी ये जैसे यहाँ पे 13,000 का नुकसान हुआ, so it went down. Okay, the ledger balance went down a bit. Okay. Now this way the until next trade में यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, so next trade I made 83,000, so my capital goes up to 10,70,000. So this way it continues. So this ledger balance is created. Now let's just have a look at it, how it looks like. I'll just put up a graph very quickly. So yeah, this is how it looks like. Not bad actually. So this is the graph of my ledger, my capital. So this is actually called capital line. So इस लाइन को जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, this is a capital line. Okay, we'll do all of it later, but let's quickly finish off what is required next. So ये हमारा लेजर बैलेंस भी अभी देखिए बन गया. अब इसके बाद में हमको जो है ना एक सिंपल हम यहाँ पे कुछ मेट्रिसेस बनाने चालू करते हैं. तो सबसे पहले तो क्या है कि पैरामीटर्स, क्या क्या हम इवैल्यूएशन जो पैरामीटर्स है, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, एक्चुअली आई शुड राइट दिस. So when it comes to evaluation parameters, first thing will be we need to figure out the duration. So duration in terms of years, है ना. So अगर आप देखें यहाँ पे, this is almost like a 16 years of data, because we have a data from 2006 Jan and until 31st of Jan 2022. So roughly about 16 years. It is just 16 years 1 month. So I'm just taking a rough number of 16. Now this is my duration. Okay, fine. Now coming to the next thing, total number of profitable trades. So positive trades, just count. If I'll just go back to this sheet, I'll just check how many trades are profitable in this. How many trades are greater than 0? That's it. So it is giving me 36. Okay. Now negative trades. Negative trade में हमको बस ये जो ग्रेटर देन है इसको लेस देन कर देना है. आगे सो टोटल ट्रेड्स ये भी आ गए. क्या अब देखिए फटाफट बनते जाएगा. हिट रेशियो आ गया, कर लो आप. टोटल पॉजिटिव 36 आउट ऑफ टोटल 83, ये आ गया आपका हिट रेशियो. परसेंटेज में डाल दो आप. नाउ इसके साथ और क्या, यहां तक तो हम समझते हैं. अच्छा, फिर आप बोलेंगे रिस्क रिवार्ड. सो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बार टोटल गेन निकाल लेते हैं. टोटल गेन क्या है? टोटल गेन कुछ नहीं है भाई. टोटल हमने जितने भी ट्रेड प्रॉफिटेबल हुए ना, उन सबके गेन को हमको ऐड कर लेना है. टोटल गेन सम इफ दिस कॉलम इज अगेन ग्रेटर देन 0, मतलब ये खाली पॉजिटिव ट्रेड के जो नंबर है उनको ही ऐड करेगा, है ना. सो पॉजिटिव नंबर्स ओनली आर बीइंग एडेड. अब यहां पे हो गया टोटल लॉस. टोटल लॉस भी आप देख लीजिए. सो टोटल लॉस कुछ नहीं, ये सेम फॉर्मूला, बस इसको ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे. So this will be less than 0. Loss making trades.
So total I have made 20 lakhs and we have lost about 8 lakhs. So net gain या लॉस कितना हो गया, इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये हो गया. अभी आप जोड़ के देख लीजिए, आपका टोटल गेन यही वाला आएगा. यू नो द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, द समेशन इज 12,70,000 एंड दैट्स व्हाट वी आर एबल टू सी हियर. या ओके. अभी इसके साथ में देखिए मजेदार और भी, अब हम यहाँ से एवरेज गेन भी निकाल सकते हैं. एवरेज गेन, तो एवरेज गेन क्या हो गया? एवरेज गेन कुछ नहीं भाई, जो टोटल गेन है इसको आप डिवाइड कर लीजिए कि टोटल पॉजिटिव, आई मीन टोटल जो पॉजिटिव ट्रेड्स है उससे. सो टोटल अमाउंट मनी मेड इन द प्रॉफिटेबल वंस एंड द नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स. सो दिस इज माय एवरेज गेन. एंड व्हाट्स माय एवरेज लॉस? सेम थिंग, एवरेज लॉस इज टोटल मनी लॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ट्रेड्स इन नेगेटिव. सो देखिए what it means is that I am losing 16,000, almost 17,000 पकड़ लीजिए, but when I'm making money I am making 57,000, है ना. तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा पिक्चर ही क्लियर हो जा रहा है. तो यहाँ पे हम और क्या क्या निकाल सकते हैं? अच्छा, सो नेट गेन इज दिस मच. अभी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम यहाँ पे एक निकालें, सो नेट प्रॉफिट या नेट रिटर्न परसेंटेज. सो नेट रिटर्न परसेंटेज टर्म्स में ये मेरा 12,70,000 तो बना है. ओके, बट व्हाट वाज माय कैपिटल? माय कैपिटल वाज 10 लाख रुपए. सो दिस इज द प्रॉफिट दैट आई हैव मेड अपॉन अ कैपिटल ऑफ दिस मच. सो माय रिटर्न इज 127%, व्हिच इज ये इस तरीके से, है ना. सो ये हो गया टोटल. लेकिन अभी हमको एक और चीज इसमें समझना है, इसको थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे नीचे कर देते हैं. यहाँ पे हमारा एनुअलाइज फिर हमको देखना है. एनुअलाइज रिटर्न कितना था? एनुअलाइज क्या हमारा रेट ऑफ रिटर्न बना है ना. तो एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज जो है वो आ जाएगा कितना? दिस टोटल प्रॉफिट मेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. ये हमारा ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन हमारे ईयर्स में ही है ऑलरेडी, है ना जी. सो आई एम मेकिंग जस्ट अबाउट 8% इन अ ईयर. सो दिस इज माय एनुअल रिटर्न. ठीक है. Just a disclaimer here, I'm not saying that this is a good strategy or a bad strategy. Forget about the numbers. I'm just showing you how to build a system. That's it, है ना. So ये crossover यहाँ पे मैंने जो parameters लिए हैं, I'm not saying that these are working. We will keep on changing. We can change it to this, है ना. So we will get a different number. So yeah. So next is what? Now from here on, यहां तक हमको अभी देखिए, हमको फिर जो गेन लॉस का रेशियो है वो भी हमको निकल जा रहा है. मतलब जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना. सो रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आप देखें, सो व्हेन यू आर मेकिंग मनी यू आर हैविंग ओनली स्ट्राइक रेट ऑफ 46%, बट व्हेन यू आर मेकिंग मनी you are making 64,000 in this. When you are losing money, you are losing 17,000 in this. So what is your gain versus loss ratio? आपका this divided by loss. So you are operating at a 3.7. Yeah. So this is one. Okay, now इसके साथ अब हम आगे का अगर और देखें तो और आगे क्या क्या है. सो हमको ड्रॉ डाउन निकालना है. ड्रॉ डाउन मतलब मैक्स ड्रॉ डाउन एक्चुअली. सो पहले जैसे मैंने आपको समझाया था, जितना भी मेरा पीक कैपिटल बना उसमें से व्हाट हैज बीन द मैक्सिमम डिप, राइट. सो ये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कैसे निकालते हैं? फिर हम एक और चीज निकालें, वो है शार्प रेशियो. ये भी हम निकालेंगे, है ना. तो सबसे पहले मैक्स ड्रॉडाउन निकालने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो हर बार जो कैपिटल
जो ये बन रहा है, दिस इज माय लेजर बैलेंस, दिस इज द मेन कॉलम। ओके, नाउ आई एम आल्सो गोइंग टू रिकॉर्ड व्हाट इज माय पीक कैपिटल। ये देखिए, ये ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पीक कैपिटल को आपको एक अलग कॉलम में रिकॉर्ड करते जाना है और नेक्स्ट कॉलम में फिर आपको ये ड्रॉ डाउन दिखा देगा। नेक्स्ट कॉलम में हम ड्रॉ डाउन कैलकुलेट कर लेंगे। तो पीक कैपिटल यहाँ पे कैसा है, सिंपल फॉर्मूला है कि इक्वल टू इफ माय करंट कैपिटल इज ग्रेटर देन द प्रीवियस पीक कैपिटल, देन current capital, else the peak capital remains as it is. This is a simple formula. तो ये peak capital यहाँ पे रिकॉर्ड होते जा रहा है। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है, राइट, बट मेरा पीक कैपिटल वही था, वही है। बट हियर एज वी हैव मेड मनी, उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉस भी हुआ है। मेरा एक बार कैपिटल 10,65,000 पे पहुंच गया, उसके बाद में यहाँ पे वापस 28,000 का नुकसान हुआ। सो my peak capital is not changing, it is remaining as it is, correct? So इस तरीके से इसको डेसिमल्स को हम ठीक कर देते हैं थोड़ा, we don't need extra decimals, so this is what it is। अब जैसे ही मेरा peak capital निकल गया, so I can easily calculate the drawdown number। So drawdown is nothing but the drop from the peak capital, so this divided by this minus 1, this is the formula for कैलकुलेटिंग ड्रॉडाउन, और इसको हम परसेंटेज में एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा ड्रॉडाउन का नंबर भी आ गया सीधा। ये हर जगह पे जहां पे भी आपको नुकसान हुआ है वहां पे आपको एक ड्रॉडाउन दिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे एक ले लीजिए, लॉस, ओके, या आई थिंक यहाँ पे एक लॉस था, या नहीं, दिस वाज आल्सो प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ पे एक लॉस हुआ, करेक्ट। सो यहाँ पे माय प्रीवियस पीक कैपिटल वाज 19,95,000 एंड आई लॉस्ट 41,000, तो मेरा 19,53 पे आ गया, है ना। सो यहाँ पे मेरे को 2.1% का ड्रॉडाउन आया। अब देखिए ये एक्चुअल ट्रेड में जो लॉस था ना, ये तो 6% का था, बट यहाँ पे जो ड्रॉप दिखा रहा है वो 2.1% का दिखा रहा है। ये क्यों मालूम है? क्योंकि हम यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं रिटर्न, ये दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द प्राइसेस, ये वाला येलो वाला। बट यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल तो हमारा 10 लाख रुपए है, तो मैं जो 40,000 का नुकसान है उसको मैं 7 लाख में नहीं गिनूंगा ना, वो तो मैं 10 लाख मेरा जो कैपिटल था उसके ऊपर ही गिनूंगा। तो उस तरीके से, राइट। सो मेरा ये भी एक है कि ये सारे कुछ बारीकियां हैं जो मेरे एग्जिस्टिंग कैपिटल के कंपैरिजन में हम अगर हम गिनते हैं तो ये हमको ड्रॉडाउन जो है ना थोड़ा थोड़ा कम दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ड्रॉडाउन का फॉर्मूला मैंने क्या डाला है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ये डाला है कि द करंट ड्रॉप कंपेयर टू माय पीक कैपिटल, ठीक है। इसको मैंने ऐसे करके स्ट्रेट कर दिया है, बट एक्चुअली हमको ये करना चाहिए कि जो आप मतलब दिस वन ऑफ द मेथड्स वेयर इट काइंड ऑफ सप्रेसेस द ड्रॉडाउन नंबर्स अ बिट, बट अगर हम एग्रेसिवली अगर लेना चाहे ना तो इसको हम दूसरा फॉर्मूला एक लगा सकते हैं। वो ये है कि हमको सिंपल सा जो है ना, दिस लेजर बैलेंस के साथ में हम सिंपल जो डिफरेंशियल है लेजर बैलेंस एंड पीक कैपिटल उसको हम ले लेंगे। सो माई लेजर बैलेंस माइनस द पीक कैपिटल, दिस इज माई लॉस अमाउंट या प्रॉफिट, मतलब ये हो गया। जहां पे इक्वल है तो 0 आएगा और जहां पे लॉस हुआ है वहां पे ये नंबर माइनस आएगा। एंड दिस आई शुड डिवाइड बाय माई इनिशियल कैपिटल। ये इससे क्या होगा ना, आप हर वो लॉस को जो है ना आप एकदम समानता में मतलब जोड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए जहां पे ये वाला जो हम सिचुएशन देख रहे थे जहां पे हमको एक 41,000 का लॉस हुआ था, वहां पे वो ड्रॉडाउन खाली 2% का बता रहा था, राइट। आई थिंक वेयर वाज इट, एनीवे मतलब बेसिकली बात ये है कि अगर हम इनिशियल कैपिटल को बेस मान लें, क्योंकि बेस आप क्या रखोगे उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो अगर आप बेस, ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है, अगर ये ड्रॉडाउन नंबर कैलकुलेट करते वक्त जैसे अगर मैंने बेस को जो है इनिशियल कैपिटल को अगर ले लिया तो वो एक अच्छा तरीका है, बिकॉज देन इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ योर स्टार्टिंग पॉइंट।
क्योंकि अगर मेरा कैपिटल, आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा फेज में मैंने स्टार्ट किया था जहां से मेरे को काफी प्रॉफिट हो गया, तो मेरा कैपिटल ऐसे ऊपर चला गया। अब अगर मैंने बेस उसी पीक कैपिटल को ही ले लिया फॉर डिवाइडिंग, मतलब कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ लॉस, तो फिर क्या है कि मतलब इट डिपेंड्स वेयर माई कर्व इज करेंटली इन पोजिशन। तो मैंने अगर पहले काफी प्रॉफिट बना लिया तो मेरे को ड्रॉ डाउन कम दिखेगा, अगर मैंने पहले प्रॉफिट नहीं बनाया है तो मेरे को ड्रॉ डाउन बड़ा दिखेगा। तो ये चीज से छुटकारा पाने के लिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से छुटकारा पाने के लिए, जो कि एक कोई भी सिस्टम टेस्टिंग में ये ऐसा होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वेयर यू स्टार्ट, नो शुड नॉट बी दैट, शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो वो केस में हमको ये करना चाहिए कि आप पी कैपिटल को रिकॉर्ड करें और पी कैपिटल से आपका ड्रॉप कितना आ रहा है उसको रिकॉर्ड करें। जैसे यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हाँ भाई पी कैपिटल से मेरे को यहाँ पे एक नुकसान हुआ, ओके, उसके बाद लेट्स से ये प्रॉफिट हो गया, बट हम दो बैक टू बैक लॉसेस को देखेंगे एक बार। लॉसेस तो हो ही नहीं रहे यहाँ पे, ओके या सो वी गॉट बैक टू बैक टू लॉसेस हियर, ये देखिए है ना, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे एक 17,000 का नुकसान आया, सो आपका ड्रॉ डाउन आ गया 1.7%, और वही वापस से जब आपने और 6,000 का नुकसान किया, ये ड्रॉ डाउन और बढ़ गया। अब ये जो है ना, ये सिंपल क्या कर रहा है, ये सिंपल यही कर रहा है कि आपका पीक कैपिटल से करंट कैपिटल, ये हो गया आपका लॉस, और वो लॉस का अमाउंट डिवाइड करना है हमको अपनी इनिशियल बेस से। सो मेरा इनिशियल 10 लाख है, सो मैं अगर इसको 10 लाख के बदले अगर मैं 11,72,000 से मैं करूं तो ये नंबर छोटा दिखेगा, है ना। जैसे इसको अगर मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द 10 lakh base which was my initial capital, if I take this as my base, so you see it becomes only 2%, whereas it should have reported 2.3% minus। तो ये बहुत बारीकी फर्क है। इस तरीके से बहुत लोग क्या करते हैं ना, दूसरों को मिस रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, मतलब दे डोंट रियली शो द रियल पिक्चर। तो ये सब बहुत निटिग्रिटीज हैं कैलकुलेशन में, जिस तरीके से मतलब कैसे आप रिपोर्ट कर रहे हो उसके हिसाब से। सो नेवरदलेस हमारा काम तो यहाँ पे हो गया। देखिए अभी हमने इंडिविजुअल ड्रॉडाउन्स को यहाँ पे इस कॉलम में हमने कैलकुलेट कर लिया है, करेक्ट। अब फाइनल यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन कुछ नहीं है, इक्वल टू बस आप मिनिमम लगा दो। मिनिमम क्या था आपका, मिनिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम। सो ये देखिए 15% का आपको ड्रॉडाउन आया है historically। So what this says is that in the past आपको जब भी नुकसान हुआ ना, तो आपका कैपिटल पीक कैपिटल से लगभग कितना गिरा है, तो आप देखते हो कि भाई 15% गिरा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आज आप अगर चालू करो तो आपने 1 लाख या 10 लाख से चालू किया, हो सकता है कि वो 15% का डाउनसाइड आज ही आपके साथ आ जाए, है ना। सो I might not have made any money, but this 15% loss can come to me in day one। तो ये मैक्स ड्रॉडाउन का कॉन्सेप्ट यही है कि ये मेरे को एक मैक्सिमम क्या डाउनसाइड हो सकता है वो उसका एक आइडिया दे देता है। बट जनरल कन्वेंशन ये है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपने हिस्ट्री में जितना देखा है उससे थोड़ा सा और आप बढ़ा के ही आपको पकड़ना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये -15% दिखा रहा है, तो आप मान के चलिए कि स्ट्रैटेजी में और 5-7% या मतलब 30 to 40% एक्स्ट्रा फेस हो सकता है। सो ये -15 है तो -20 -22 भी जा सकता है। सो दिस इज मैक्स ड्रॉडाउन। ओके, नाउ शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या है, शार्प रेशियो में हम एक्चुअली इट इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली रिटर्न अपॉन रिस्क, यही है। अब रिस्क हम मेजर करते हैं कैसे, रिस्क हम मेजर करते हैं वोलाटिलिटी से। वोलाटिलिटी किसकी, मार्केट की नहीं, हमारे पोर्टफोलियो की, है ना, वोलाटिलिटी। सो रिटर्न ऑफ माय पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय वोलाटिलिटी ऑफ माय पोर्टफोलियो। सो रिटर्न ऑफ माय पोर्टफोलियो इज वेरी सिंपल। रिटर्न ऑफ माय पोर्टफोलियो तो हमको दिख ही रहा है, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न। 16 साल में 136% अगर बना है तो 8 साल में, आई मीन 16 years में यू वुड हैव मेड 8.5%। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप उसको खाली डिवाइड कर देना है ना। अब शार्प रेशियो में हम वोलाटिलिटी कैसे निकाले पोर्टफोलियो, तो उसके लिए हमको करना ये होगा, एक डेली एक स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा पोर्टफोलियो का निकालना पड़ेगा। पोर्टफोलियो
है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ माय पोर्टफोलियो. अब ये केस में हमारा एक्चुअली इट विल बी डेली, बट एनी नंबर ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस विल वर्क. तो हम क्योंकि यहाँ पे डेली मॉनिटर कर रहे हैं पोर्टफोलियो को, तो इसके लिए हम यहाँ पे डेली वॉलेटिलिटी निकाल लेंगे. अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये पीएफ मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न ऑन अ डेली बेसिस, है ना. सो दिस इज नथिंग बट द ledger balance, current ledger balance divided by previous day's ledger balance, and I have to just express this in terms of a percentage. तो ये मेरा पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, ये वो चीज बता रहा है. ओके, सो दिस इज माय डेली वॉलेटिलिटी ऑफ माय पोर्टफोलियो. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर. तो ये हमने एक बार निकाल लिया, बस अब इसका क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. सो उसके लिए फॉर्मूला ये है STDV, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द होल दिस कॉलम. सो बस ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर ऑन अ डेली बेसिस. ये है आपका डेली एसडी ऑफ योर पोर्टफोलियो. अब इसको अगर हमको एनुअलाइज करना है ना, तो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाइम. सो एक साल में 252 दिन होते हैं, 252. सो देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई दिस विद द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ 252. सो डेली स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 252 अगर हम करें, so this is what I am getting as a annualized volatility of my portfolio, which is 9.9% here. Now sharp ratio के लिए हम रिस्क और रिटर्न दोनों ही जानते हैं. तो इसमें क्या है ना, इसमें एक और थोड़ा सा एक चीज है, which is what I need to mention also. रिस्क फ्री रेट. रिस्क फ्री रेट मार्केट में क्या चल रहा है. सो लेट्स से रिस्क फ्री रेट का मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ सकते हैं, मतलब जो कि एक्चुअली आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये पैसा अगर मैं मार्केट में नहीं लगाता या यहाँ पे नहीं लगाता, तो मैं इतना परसेंट रिटर्न तो मेरे को सालाना मिलता ही, विदाउट एनी रिस्क, जीरो रिस्क. सो लेट्स से वी अज्यूम 4%, एनीथिंग लाइक वी कैन अज्यूम 0% ऑल्सो. सो एक बार 4% से हम देख लेते हैं. सो शार्प रेशियो इज नथिंग बट जो रिटर्न आपने निकाला है एक्सेस ऑफ द रिस्क फ्री रिटर्न, यही है आपका एक्सेस रिटर्न, है ना. ये हो गया आपका एक्स्ट्रा रिटर्न. दिस डिवाइडेड बाय द वॉलेटिलिटी, एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी. ठीक है ना. सो ये आपको एक्चुअली इन डेसिमल्स हम एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस इज 0.45. सो दिस इज वेयर द शार्प रेशियो कम्स इन, है ना. सो ये शार्प रेशियो से हमको क्या मालूम पड़ता है कि अगर आप दो स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, सो यू कैन विदाउट much of difficulty, this is one number which brings two strategies which have different risk profile, different return profile, but you can still compare them like an apple to apple comparison is good, है ना. सो इस तरीके से देखिए, एक सिंपल तरीके से आज हम मतलब प्रॉब्ली 1 घंटे के अंदर में हमने एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डेवलप भी कर लिया, और उसका पूरा जो पैरामीटर है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, समझा भी, एक्सप्लेन भी हमने कर लिया, है ना. सो आई थिंक विद दिस आई हैव लाइक completed most of the thing that I wanted to say, and probably we will open the floor for the question answer session, and let me see. Okay. Yeah. Okay, I see quite a few of questions. Okay. There are lot of one, but I will not be able to answer.
where do I get historical data? Okay, चलिए ये एक simple सा मैं आपको I'm going to share with you. So basically historical data you can simply get from the NSE site. You can actually go to the NSE site. I'll just show you right away. Yeah, I think you should be able to see my screen. Yes. So basically यहाँ से आप जा सकते हैं. ये पुराना NSE का वेबसाइट है. This is what I find comfortable. So you can actually go to products and then indices, right? So from indices you can select historical data, और historical data में आने के बाद you can actually click on this search and you can select a date range, whatever date range you want. But इसमें क्या है कि आपको you have to select only 365 days at one go, है ना? So आपको पीछे का एक एक करके 365 days के slots में you can download. So just selected a random range. Let's say this is the range I wanted. So get data and you get this as an Excel file, a CSV file, so you can download. इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड भी हो जाएगा. Okay, so this is how it works. And when we were talking about evaluating those strategies, so उसमें हम ये भी हम अभी देख सकते हैं कि let's say if we build the system, है ना? So what combination would work, or any combination that you think can work, we can try it out. So let's say 12 and 26. This is the one that is normally used in MACD histogram. So अभी देखिए यहाँ पे हमको important parameters क्या क्या है, ये इस पे हमको नजर देना, hit ratio, है ना? Annualized return, this one, gain loss ratio, and max drawdown, sharp ratio. एक बार के लिए हम रिस्क फ्री रेट को अगर हम 0% पकड़ ले तो ये हमारा ऐसे आ रहा है. ओके, सो अभी लेट्स से इन वन स्ट्रेटजी we are getting annualized return of 7.6, drawdown of 19%. Now compared to this, if I'm just going to copy this here. ये सारे जो है ना numbers हम एक साथ एक बार we can simply keep it here. Okay. So ये हमारा एक particular parameter के हिसाब से we got this thing. So let's say this is STR1 results और ये हो गया हमारा STR2. तो अभी हम यहाँ पे पैरामीटर कुछ हम चेंज कर देते हैं. So let's say we now pick 9 and say 20, any number 33. Huh? So now in comparison, you see this is it seems slightly better off. I don't know, not much, but a bit. But let's say this one, not a great difference. And let's say, yeah, this one. So in comparison to this, not much of a difference in strike rate, but देखिए annualized return में थोड़ा सा फर्क आया. यहाँ पे net return 140 था, यहाँ पे 120 था इसके पहले, and this is 141. Your gain loss ratio has also improved a bit. Your drawdown has reduced a bit, which is a good thing. और आपका देखिए यहाँ पे sharp ratio भी थोड़ा सा improve हो गया है, right? So like this, if we try out even a longer this thing, तो देखिए इसमें आपका max drawdown के साथ में now you can also compare this ratio return versus max drawdown. तो ये भी आप एक ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं. So let's say you are on an average annualized return, you are expecting 8%, okay, and the drawdown is coming in at 12.6. So this is the ratio, है ना? So drawdown versus
return, this is also one ratio you can look at. मतलब जिसमें आपका ड्रॉडाउन कम है और रिटर्न ज्यादा अगर आता है, so वो भी एक मेजर है. इट इज नॉट ओनली the return versus the return versus the volatility of the portfolio, जो कि ये standard deviation हम पकड़ रहे थे, but it could be return versus the drawdown also. जैसे ये sharp ratio में आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला वही है, रिटर्न डिवाइडेड बाय मैक्स ड्रॉडाउन. तो इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हैं ना. सो I'm just picking up 100 and this one let's say 50. So देखिए यहाँ पे ट्रेड्स आपके बहुत कम हो गए, है ना. So if you're not able to take trades only, it will not deliver anything. और अगर हम इसको बहुत सुपर फास्ट कर दें, let's say 5 and 10, 5 period EMA and 10 period EMA, तो यहाँ पे देखिए मेरे ट्रेड्स काफी बढ़ गए हैं, बट यहाँ पे it is not delivering much. Annualized return is only 3%, which is actually not good. And maximum drawdown देखिए कहाँ चला गया, it is 70%. I mean that would have meant that I would have lost my entire capital, है ना. So at least I know that this is something really मतलब not going to work. So yeah, so that is what it is for today. So based on these simple concepts, you can check your any strategy that you feel can work. You can use these simple parameters and matrices that I have shown here to kind of evaluate any strategy comparison to any other one. Yeah. So thank you so much. With this, I would I think there are a lot of question answers, but we are running out of time, so we will not be able to take these questions right now. But surely we will try to get back to all of your queries. Thank you so much, and we will look forward to join you back soon with something new and interesting again. So thank you so much. Thank you for joining in.